ये एक सरकार आए है जो सिर्फ कोई एक फैमिली को अटैक करने के लिए हर चीज में बात करते, पुराने प्राइम मिनिस्टर को अटैक करते, हर स्पीच में वही बोलते, सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि पहला जो सरकार थे सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। इसको मिटाने के लिए आप लोग नाम बदल रहे, स्टेडियम बदल रहे, पार्लियामेंट बदल रहे, लेकिन ये याद तो रखेंगे दुनिया, लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें, ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। शताब्दी रॉय जी। ने जो भी बोल रहे थे, माय गवर्नमेंट ये किया वो किया, उसमें जितना ताली बज रहे थे उसमें उनका बात कम सुनाई दिया। अच्छी बात है, लेकिन प्रेसिडेंट का एड्रेस सिलेबस में थे और जो ताली बजा रहे थे, ताली बजाना भी सिलेबस में थे, लेकिन सिलेबस के बाहर जो है वो मैं अभी बोलना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर 1, Honorable President Madam said, according to Niti Aayog, in the last 1 decade of my government, about 25 crore countrymen have been lifted out of poverty. This estimation by Niti Aayog based on NMPI invites more question than clarity, because Niti Aayog released on NHFS 5 data for 2019 and 2021. It is also important to note that the NHFS survey was stopped after data collection was stopped in 22 states due to COVID. Therefore, the project, the relevant data beyond 2021, the projection of the data has been perhaps taken by using data for non-COVID years to extend non-COVID rates in improvement after COVID to say 2022 and 2023. While consumption expenditure survey were not done for 8 years from 2014 to 2022. So raise valid question on the purpose of making the NMPI as a poverty indicator for India. Thus the question is that assumption of 25 crores is justified, credible or not. Point 2. Madam President said, today, crores of citizens are working in MSMEs. What are the ground realities? August 17, 2018, Ministerial Memo number 13, the study paper from Reserve Bank of India informs the MSME sector has witnessed 2 major recent shocks, demonetization and GST. As per Udyam Register Portal, the total number of MSMEs shut down between July 1, 2020 and July 18, 2022 stood at 24,839, of which during the fiscal year 2023, 5,152 units shut down their operation. Point number 3, in the last decade, 16 M's has been established, but the last 10 years, none of 16 M's are not in fully functional in the list of the government. As per Ministry of Health and Family Welfare press release on 19 December 2023, in the past, 6 M's become functional within a period of 9 years, in spite there was change in political party in government. Point number 4, government orders Aadhaar-based payment system for Manrega holders. Try input indicate as on October 2021 in rural India, where the job card holders or Manrega resides, only had 29.3% broadband entry. On other hand, police and SBI in places advising public to lock Aadhaar to prevent hacking by hackers. Number 5. What remains absent in Madam President's address are as follows: unemployment, burning questions, high inflation, the average commoner compromising with many essential needs, safety and security of girl child, MSP for farmers, Manipur, the devastated life of girl child and commoner suffering of ordinary and poor people while traveling by trains across India, reality hiding under the hype of flagging Vande Bharat. Madam President has said her government believes in following pillars towards a journey of development: youth power, women power, farmers and poor. However, the constructive optic merely established that the majority of youth, women, farmers and poor are the confirmed victim in reality.
Point number 7, Ujala Yojana. Out of the 95.9 million PMUY beneficiaries, 11.8 million did not get even a single LPG bottle during the last financial year, said Minister of State of Petroleum and Natural Gas Ramesh Chatterjee in the statement on the Rajya Sabha in 2023. आप लोग बोल रहे थे गैस चूल्हा से गैस पे लेके आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जानना है कितने लोग रिफिल किया है वो बात चाहिए, क्योंकि जितने आप लेके आए थे उतना ही वापस भेज दिया चूल्हे में। CAG audit report in 2019 reveals the cylinder scam in PMUY, not been able to find any further CAG audit report on PMUY. CAG रिपोर्ट से मैं बोलना चाहती हूँ, CAG रिपोर्ट के हिसाब से वेस्ट बंगाल में आप 100 दिन का पैसा नहीं दे रहे। अगर CAG रिपोर्ट से ये नहीं दे रहे तो हम लोग को जानने का ये हक है जो नेशनल हाईवे का CAG रिपोर्ट क्या है, आयुष्मान भारत का CAG रिपोर्ट क्या है, और देश का कौन कौन सा स्टेट में आप CAG रिपोर्ट्स के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, कौन कौन स्टेट में नहीं दे रहे। सिर्फ वेस्ट बंगाल के नहीं दे रहे, नहीं और भी कोई स्टेट है जो आप लोग यही बिहेव कर रहे हैं उनके साथ। नेक्स्ट वन, एविएशन। आप लोग बोल रहे हैं चप्पल के साथ फ्लाइट में चढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिस्टर या सरकार को पता है ये फ्लाइट का प्राइस अभी फेयर कितना तक पहुंच गए। इकोनॉमी क्लास मिनिमम डोमेस्टिक फ्लाइट में 30,000 29,000 के टिकट मिलते, इसमें भी सरकार चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। नेक्स्ट पॉइंट, मैडम प्रेसिडेंट सेड द कंट्री रिमेंबर्ड अनसंग फ्रीडम फाइटर। ये याद तो जरूर रखेंगे, इसके साथ ये भी याद रखेंगे ये एक सरकार आए हैं जो सिर्फ कोई एक फैमिली को अटैक करने के लिए हर चीज में बात करते, पुराने प्राइम मिनिस्टर को अटैक करते, हर स्पीच में वही बोलते, सिर्फ यही बोलना चाहते हैं जो पहला जो सरकार थे सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। यह इसको मिटाने के लिए आप लोग नाम बदल रहे, स्टेडियम बदल रहे, पार्लियामेंट बदल रहे, लेकिन ये याद तो रखेंगे दुनिया, लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। नेक्स्ट, एज पर द point 8, Madam President said about नारी शक्ति। 2 हिस्टोरिक ओकेशंस के बाद क्या है हम लोग का मैडम प्रेसिडेंट, एक है न्यू पार्लियामेंट और एक राम मंदिर। अनफॉर्चुनेटली दोनों में उनको इनवाइट नहीं किया था, ये है नारी शक्ति। सेकेंड, इनसाइड 7 प्राउड डॉटर्स जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन लेके गए थे, एफआईआर नहीं लिया था, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद 7 दिन बाद एफआईआर लिया था, ये है नारी शक्ति। फिर आप लोग क्या किया, उस प्लेयर को, उस स्पोर्ट्समैन को आप लोग ऐसा कर दिया, उसका जिंदगी भर का कमाई जो मेडल था वो वापस दे दिया, उन्होंने स्पोर्ट्स से रिटायर कर लिया, ये है नारी शक्ति। आप एज पर द एनसीआरबी रिकॉर्ड्स इन 2013 there was 3,09,546 cases of crime against women. In 2022, it has reached to 4,45,256 cases, in increase of 30.48%. ये है नारी शक्ति। आप वो बोल रहे हो जहाँ पे राम मंदिर है वहाँ पे राम जी करे, वो तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह पे राम जी, ये भी अलग बात है राम जी का ज़्यादा फोटो है कि मोदी जी का ज़्यादा फोटो है, लेकिन फिर भी हर जगह पे राम जी। सीता माँ कहाँ है, ये है नारी शक्ति। आप कुछ पुरुष शक्ति का बात करें, जैसे बिल्किस बानो केस से जो लोग रेपिस्ट जो थे वो बाहर आए, उनको 2 बार ऑनर दिया है, कहाँ का, एक जेल से बाहर निकालने के साथ माला दिया, ये किया, फिर गांव में जाने का टाइम। तो मतलब रेपिस्ट को आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, ये है पुरुष शक्ति। और प्रेसिडेंट को हम लोग का पार्लियामेंट में 2 लड़का आ गए थे, वो जिस एमपी का रिकमेंडेशन से आए थे उस एमपी का कोई बात नहीं किया, ना वो आके कुछ बोले, ना उनको कुछ बोलने दिया है। उसके अगेंस्ट में हम लोग जब पूछ रहे थे क्यों हुआ, क्या हुआ, तब हम लोग को सस्पेंड किया है, ये है पुरुष शक्ति। आप साक्षी मलिक जिस पुरुष एमपी के अगेंस्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेंट किया था,
साक्षी मलिक का स्पोर्ट्स करियर खत्म हुआ, लेकिन उस एमपी का पावर और भी बढ़ गया। ये है परिशक्ति। मैं ये बात पे खत्म करूंगी। बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, एक इंसान इतना पावरफुल है, भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश ये जानना चाहते, जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते। छोटा सा इंसान मेहुल चोक्सी को ना ले सकते, छोटा सा इंसान विजय माल्या को ना ले सकते। छोटा सा काम जो हम लोग का काला धन है वो नहीं ला सकते। ये क्वेश्चन है देशवासी का। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।